Now this you will understand very easily. This is the graph and this is particular function fx is equal y is equal to fx. This is such a simple function. And now you have to find out the maximum of this function. Now there is more than one, two, three, four maximum in this. You can find out the maximum of this. So you will have to search like this. So if this is a continuous function and simple function you can do, but many times this function is discontinuous, non-linear. Stochastic means probabilistic and has unreliable or undefined derivative. In this case, you cannot use the simple search technique. So in this case, you have to use the genetic algorithm like genetic algorithm or other type of the algorithm. So this will give you the suboptimal solution. Optimal means optimal, suboptimal means which is not the best but just below the best. Just not the best but below the best. So suboptimal solution. So application of the genetic algorithm is optimization, robotics, machine learning, signal processing, design. You can see how very automatic programming, economics, immune system, ecology, population, genetics. So there are so many applications. Now this is the basic of the things. That means you can see here, this is the, in our world there is a competition for survival. So during this competition of the survival, you make the selection. So parents are selected. The nature select the parents. So in our genetic algorithm program, we will select some solutions. What are the parents? We will select some solutions. And we will select this solutions of the parents based on their fitness. Nature always select the best parents for creation of the next generation. So we make it survive. Now those who are fit for the survival, they will reproduce and give birth to the offspring. That is new solutions. It will give to the offspring means children means new solution. And then these new solutions will be made to fight or compete. That is they will use to give the better solutions. And in this way, this particular process, iteration, by different iteration, number of iteration, this thing will be continuous. Now we have the selection, recombination and mutation. These are the stochastic operators. Now what is the difference between the genetic algorithm and nature? You see this second column. In the nature we have environment. In the nature we have environment. Here in our method engineering problem we have the optimization problem. So our optimization problem is like the environment. In the nature we have the individual living in that environment. Animals have, people have, they are living in the environment. We have here feasible solutions. And in nature we have individuals degree of adaptation to surrounding in environment, and here we have the solution quality. These are the similarity between the genetic algorithm and nature. We will directly go to the problem. Basic principle. We have to have the body. We have to find out the fitness function. We have to carry out the reproduction, and we have to find out the convergence. So I will directly give you the solution, but before this, we will take one problem, but before this, we have how to encode, how to evaluate the fitness, and how to carry out the reproduction parameters and survival selection that we have to do. So we have very simple problem. We have very simple problem that is to maximize. We have to maximize the x between some limit. Then this x is coded into 1 and 0, that means the binary. We have to make the binary coding for particular solution of number. It is not always necessary, and you have to, if the number of these digits are more, then the accuracy will be more.
GA giving survival of fittest principles, so they are naturally used for the maximization problem, but you can use the minimization, you can carry out the minimization by using this function. Maximization problem can be converted to the minimization problem, or minimization can be treated as maximization problem, this you already know. So first is the initialization, how to create the population that is feasible solution. So we create the population that is the string of variable randomly. We create the solution by randomly. Evaluate the string points fitness. We create the calculate the fitness, and we make the solution. We select this by this roulette wheel. What is the roulette wheel? रोलेट व्हील पता है ना? सिनेमा पिक्चर में देखा है, कैसीनो में नहीं देखते कैसीनो. So this is the roulette. In the roulette wheel there are from 0 to 9, suppose there are 10 numbers. You put money on that number. आप क्या करते हैं रोलेट व्हील में, अगर कैसीनो में जाते हैं तो 0 से 9 बोले तो 10 नंबर, वो व्हील के ऊपर 0 से 9 के एक के ऊपर पैसा लगाते हैं, फिर वो व्हील को घुमाते हैं, फिर वो व्हील घूमते घूमते एक जगह पे रुक जाता है, और अगर 7 नंबर पे रुक गए तो 7 नंबर पे जिसने पैसे लगाए उसको वो पैसे मिल गए. अभी ये रोलेट व्हील में देखो क्या होता है, ये रोलेट व्हील में जो 9 नंबर है, 10 नंबर है ना, 0 to 9. So this roulette wheel is divided in equal parts. Equal part में divide किया रहते हैं उसको, बराबर है ना? Why it is divided into equal part? And on equal part, upon each part there are numbers 0, 1, 2, 3, 4 like this. Why it is divided in equal part? Because when you rotate it and when it stops, there are equal chances for all the numbers to stop at this particular place. अभी समझो मैंने रोलेट व्हील ऐसा बना दिया, ऐसा रोलेट व्हील अभी जैसा अभी दिखा. अब ये ग्रे कलर है, इसमें मैंने नंबर 9 रख दिया, कि आपका कोई फेवरेट नंबर होगा 7 होगा, 7 रख दिया. इधर मैंने 3 रख दिया, इधर मैंने 5 रख दिया, और इधर 2 रख दिया, और फिर मैंने रोलेट व्हील घुमाया, तो ये ग्रे में कौन सा कलर नंबर रखा है? 7 नंबर रखा है. तो ये 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया पे इसको रख दिया. उससे कम प्रोबेबिलिटी हो गई ये 5 की, जो ग्रीन कलर है इसकी कम प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी उससे कम, और ये ब्लू कलर वाले है ना, इसके ऊपर जो नंबर मैंने लिखा उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम हो गई. तो ये अनफेयर है, ये डिवीजन अनफेयर है. ऐसा रोलेट व्हील गैम्बलिंग में कोई नहीं खेलेगा. देखिए ऐसा रोलेट व्हील अपने नेचर में रहता है. इन आवर नेचर द रोलेट व्हील इज लाइक दिस. नेचर में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा फिट है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको सबसे ज्यादा एरिया दिया जाता है, और जो सबसे कम स्ट्रॉन्ग है उसको कम एरिया दिया जाता है. और नेचर में जब रोलेट व्हील नेचर है ऐसा अगर कंसिडर किया, तो जो पेरेंट्स रहते हैं, जो अपने ऑफस्प्रिंग रहते हैं, जो ज्यादा फिट रहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है. दिस इज कॉल्ड एज द फिटनेस फंक्शन. दिस इज कॉल्ड एज द फिटनेस. दिस इज द वे यू हैव टू कैलकुलेट द फिटनेस. समझो आपको एक फुटबॉल की टीम बनाना है, फुटबॉल की टीम बनाना है, तो आप क्या करेंगे? पहले पांच जो प्लेयर होंगे वो सबसे फिट रहेंगे ना. बाद के 2-3 जो है वो फिट नहीं रहेंगे, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके पास अच्छा स्किल होगा. और सबसे आखिरी 10वां जो कैंडिडेट है, 10वां जो मेंबर है, वो तो बिल्कुल फुटबॉल खेलने के लायक नहीं रहेगा, लेकिन उसको तुम टीम में क्यों लेंगे? क्योंकि वो स्पॉन्सर करके आपको कुछ फुटबॉल लेके देगा, पैसे देगा, पार्टी देगा. ऐसा एक ही रहेगा कि सभी 9 लोग बिल्कुल जो रीच है उनको ही लेंगे, ऐसा नहीं रहता. तो नेचर में भी ऐसा ही होता है. ये ऐसा ही करना है आपको टीम का सिलेक्शन. फिटनेस, यू हैव टू डिफाइन द फिटनेस. So I think I can see from your faces that you are understanding some sort of the thing. Yes. Reproduction, crossover and mutation. This we have already seen. This is 1 and 2. These are the chromosomes of parent 1, parent 2. And after in nature में क्या होता है कि ये क्रॉस हो जाता है, इसका एक पार्ट और इसका दूसरा पार्ट. पहले का 1 का एक पार्ट, दूसरे का एक पार्ट, दूसरे का पहला पार्ट, पहले का दूसरा पार्ट, ऐसे कंबाइन होकर नए चिल्ड्रन बनते हैं.
ऐसे ही हमें इसमें भी करना है कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग। देखो कैसे होता है। अब समझो ये पेरेंट्स है हमारे, जो सॉल्यूशंस है 10001001 ऐसा हमने डिफाइन कर लिया है। तो हम इसे क्रॉसओवर करेंगे, क्रॉसओवर करके इसका ये हेड बोलेंगे, ये 4 डिजिट है ना उसको हेड कहेंगे और ये बाकी के डिजिट को टेल कहेंगे। तो इसका हेड लेंगे और इसका टेल लेंगे और इसका टेल लेंगे और इसका हेड लेंगे। इस तरह से हमने क्रॉसओवर कर दिया। ये पेरेंट्स से हमें ऑफस्प्रिंग चिल्ड्रन मिले और ये क्रॉसओवर कर दिया। नेचर में ऐसा होता है, इसलिए हमने कोई सोचा नहीं कि ये सॉल्यूशन अच्छा होगा। नेचर में होता है तो हमारे में अच्छे ही चिल्ड्रन रहेंगे, ऐसा हमने एज्यूम किया। इस तरह से एक ऑपरेट हमें करना है कंप्यूटर प्रोग्राम में, क्रॉसओवर ऑपरेशन। एक क्रॉसओवर ऑपरेशन एक ही पॉइंट्स पे नहीं, अलग अलग पॉइंट पे 2 पॉइंट पे भी कर सकते हैं, यूनिफॉर्म में कर सकते हैं, जिससे डिफरेंट आउट ऑफ क्रॉसओवर। म्यूटेशन, फिर ये हमारा चिल्ड्रन था, इसमें क्या था, ये ब्लू जीन था, तो हमने ब्लू जीन को फेंट ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज द म्यूटेशन। सो जो हमारे चिल्ड्रन रहेंगे ना, उस चिल्ड्रन में एक आधा जीन या एक आधा नंबर हम चेंज कर देंगे, क्योंकि उसके चांसेस अच्छे रहेंगे सर्वाइवल के। सो टू मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिविजुअल, डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेचर। सब समझो यूरोप में है या इंग्लैंड में आप होंगे, सब गोरे लोग हैं, उनकी पेरेंट्स भी गोरे हैं तो उनके बच्चे भी गोरे ही रहेंगे। ये ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, उसमें डाइवर्सिटी भी होना। सो क्या करेगा नेचर, कुछ सालों के बाद में एक जीन ऐसा कर देगा कि फॉर नो रीजन एक ब्लैक तैयार हो जाएगी। आपने वो डायनासोर का पिक्चर देखा होगा बहुत सालों पहले है, तो इसी प्रिंसिपल पे था। क्या नाम था सर उसका, डायनासोर नाम याद नहीं, जुरासिक पार्क। तो जुरासिक पार्क 3 या 4 में ऐसा ही म्यूटेशन बताया है। याद है कि आपको पिक्चर में क्या दिखा था? तो एक साइंटिस्ट क्या करता, ये डायनासोर को ऐसा पकड़ के बाड़े में रख देता, तो वो बोलता है इसकी तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो वो साइंटिस्ट बहुत होशियार रहता, वो उसको घमंड रहता, वो बोलता नहीं, इसमें सब मेल्स है, सब मेल्स है तो चिल्ड्रन पैदा ही नहीं होंगे। लेकिन नेचर क्या करता है, नेचर कुछ दिन देखता है, अरे बोलते ये तो मेरे नेचर के खिलाफ है, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही, तो म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन कैसा हो जाता है, जो एक मेल है वो फीमेल कन्वर्ट कर देता है, दैट इज द म्यूटेशन दैट नेचर, एंड दैट इज व्हाई द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। ऐसा 3 था पिक्चर में आप देखो तो आप बहुत छोटे होंगे तब, मैं तो बहुत सालों पहले। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट वन प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वन प्रॉब्लम, एक 8 डिजिट का एक सीक्वेंस है या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ 8 डिजिट। अब हमें क्या करना है कि उसमें मैक्सिमम 1 होना। अब ये तो आप हाथ से भी सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू पुट 1 1 1 1 एट 8 प्लेसेस, इट विल बी मैक्सिमम 8। लेकिन हमें ये हाथ से नहीं करना है, सॉल्यूशन हमें बिफोरहैंड पता है, हमें ये जेनेटिक एल्गोरिथम से करना है। So how we can do it by genetic algorithm? We start with the population of n random string, 6 string हमने ली और लेंथ कितनी है, 10 है। तो 1 2 3 4 ऐसी लेंथ है इसकी 10 और ये 6 पेरेंट्स हमने तैयार किए। कैसे तैयार करना, 1 और 0 कैसा लिखना, इधर में ये 8 प्लेसेस में 1 और 0 कैसा लिखना, रैंडमली टॉस करना है। टॉस द कॉइन, अगर हेड आया तो 1 और टेल आया तो 0, ऐसा करते करते इसमें 1 और 0 लिखते जाना। तो हमें कितने पेरेंट्स मिले, 6 पेरेंट्स मिले। यहाँ इस कहा किस जगह में 1 है और 0 है, 1 है 0 है 1 है। सो इसमें कितने 1 है, इसके फिटनेस कैसा डिसाइड करेंगे, फिटनेस डिसाइड करेंगे हम हमारे ऑब्जेक्टिव से। अगर जब फुटबॉल की टीम बनाना है तो फुटबॉल कौन अच्छा खेल सकता है, वो फिटनेस डिटरमाइन करेगा। क्रिकेट है तो क्रिकेट, और अगर आपको IAS की एग्जाम क्रैक करना है तो फिटनेस, व्हाट इज द फिटनेस फंक्शन, इंटेलिजेंट या जनरल नॉलेज कैसे। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, टू मैक्सिमाइज द 1। तो जिस स्ट्रिंग में ज्यादा 1 होंगे उसका फिटनेस ज्यादा, और जिसमें पूरे 1 है उसका सबसे ज्यादा।
तो इसमें कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7।